Hare Krishna. Bhagavad Gita as it is, chapter 14, the three modes of material nature. Text 1. Shri Bhagwan Uvacha Param Bhuya Pravakshami Jnananam Jnanam Uttamam Yajñatva Munaya Sarve Param Siddhim Ito Gata. English translation. The Supreme Personality of Godhead said, "Again I shall declare to you this supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection." Hindi translation. भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। Text 2. इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साध्यमर्मागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. English translation. By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. Thus established, one is not born at that time of creation or disturbed at the time of dissolution. Hindi translation. इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। Text 3. मम यो निर्मदा ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत. English translation. The total material substance called Brahman is the source of birth, and it is that Brahman that I impregnate, making possible the birth of all living beings, O son of Bharat. Yes. The total material substance called Brahm. Hindi translation. हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भ से करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। Text 4. सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदापिता. English translation. It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. Hindi translation. हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। Text 5. सततं रजस्तमा इति गुणः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनम् अव्ययम्. English translation. Material nature consists of three modes: goodness, passion, and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjun, he becomes conditioned by these modes. Hindi translation. Very important. भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इस गुणों से बन जाता है। Text 6. तत्र सतत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ. English translation. O sinless one, the mode of goodness, being
purer than the others, is illuminating, and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode become conditioned by a sense of happiness and knowledge. Hindi translation. हे निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। Text 7. रजो रागात्मकं वेत्ति तृष्णा संगम उद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। English translation. The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive actions. Hindi translation. हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। Text 8. तमस्तु ज्ञानजं वेद्ति मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति तन्निबध्नाति भारता। English translation. O son of Bharata, know that the mode of darkness born of ignorance is the delusion of all embodied living entities. The results of this mode are madness, indolence, and sleep, which bind the conditioned soul. Yes, यहाँ पे भगवान तमोगुण के बारे में यानी कि मोड ऑफ इग्नोरेंस के बारे में बता रहे हैं। हिंदी ट्रांसलेशन। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो जीव को बांधते हैं। टेक्स्ट 9। सत्त्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारता ज्ञानम आवृत्य तु तमा प्रमादे संजय इत्युता। इंग्लिश ट्रांसलेशन। O son of Bharata, the mode of goodness conditions one to happiness, passion conditions one to fruitive action, and ignorance, covering one's knowledge, binds one to madness. हिंदी ट्रांसलेशन। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। टेक्स्ट 10। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारता रजा सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Sometimes the mode of goodness become prominent, defeating the modes of passion and ignorance, O son of Bharata. Sometimes the mode of passion defeats goodness and ignorance, and at other times ignorance defeats goodness and passion. In this way, there is always competition for supremacy. हिंदी ट्रांसलेशन। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। गुड। टेक्स्ट 11। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशा उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् दिव्यधम सतम इत्युता। इंग्लिश ट्रांसलेशन। The manifestation of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by the knowledge. हिंदी ट्रांसलेशन।
सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। टेक्स्ट 12। लोभा प्रवृत्तिरारम्भा कर्माणं क्षमा स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। O chief of the Bharatas, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, active activity, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering develop. यस, हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए। जब रजोगुण बढ़ता है तो क्या होता है हमें? हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। यस। टेक्स्ट 13। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तस्मै तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। इंग्लिश ट्रांसलेशन। When there is an increase in the mode of ignorance, O son of Guru, darkness, inertia, madness, and illusion are manifested. जब तमोगुण बढ़ता है तब क्या क्या होता है हमें देखिए। हिंदी ट्रांसलेशन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। टेक्स्ट 14। यदा सत्वे प्रवर्तेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकानां लाना प्रतिपद्यते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। When one dies in the mode of goodness, he attains to the pure higher planets of the great sages. हिंदी ट्रांसलेशन। ये नहीं दिए बेटा। जब कोई मोड ऑफ गुडनेस में शरीर छोड़ता है तो वो हायर प्लैनेट्स, जहाँ पे सेज साधु लोग संत लोग रहते हैं, उच्च प्लैनेट्स पर, उच्च लोकों में जाता है। टेक्स्ट 15। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। When one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities, and when one dies in the mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom. हिंदी ट्रांसलेशन। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। यस, तो क्या बताए? सतोगुण में मर रहे हैं तो उच्च लोकों पे जा रहे हैं, रजोगुण में तो मरते लोग मनुष्य वगैरह ही बनेंगे, और तमोगुण में मरते हैं तो पशु योनि में जन्म लेते हैं। टेक्स्ट 16। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। इंग्लिश ट्रांसलेशन। The result of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness, but action done in the mode of passion result in misery, and action performed in the mode of ignorance results in foolishness. यस, अब देखो हम कैसे कर्म करते हैं तो कैसा क्या होता है। हिंदी ट्रांसलेशन। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। टेक्स्ट 17। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानम एव च। इंग्लिश ट्रांसलेशन।
From the mode of goodness, real knowledge develops. From the mode of passion, greed develops. And from the mode of ignorance, develop foolishness, madness, and illusion. हिंदी ट्रांसलेशन। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। टेक्स्ट 80। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण प्रवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion live on the earthly planets, and those in the abominable mode of ignorance go down to the hellish worlds. हिंदी ट्रांसलेशन। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। टेक्स्ट 19। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। इंग्लिश ट्रांसलेशन। When one properly sees that in all activities no other performer is at work, then these modes of nature, and he knows the Supreme Lord, who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. हिंदी ट्रांसलेशन। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। टेक्स्ट 20। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतम अश्नुते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। When the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age, and their distresses, and can enjoy nectar even in this life. हिंदी ट्रांसलेशन। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर को से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन से अमृत का भोग कर सकता है। टेक्स्ट 21। अर्जुन उवाच कैलविंगे स्त्रीलिंगोणान् एतानि तो भवति प्रभो किमाचारा कथं चैत्रान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Arjuna inquired, O my dear Lord, by which symptoms is one known who is transcendental to these three modes? What is his behavior and how does he transcend the modes of nature? हिंदी ट्रांसलेशन। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। टेक्स्ट 22 to 25। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवर्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणे यो न विचाल्यते गुणावर्तन इति एवं योवतिष्ठति निंगते समा दुःख सुखम स्वस्था समा लोष्टाम कांचना
तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति मान अपमानयो तुल्य तुल्यो मित परि तुल्यो मित्रादि पक्षयो सर्वारंभा परित्यागी गुणातीता स उच्यते. इंग्लिश ट्रांसलेशन. The Supreme Personality of Godhead said, O son of Pandu, he who does not hate illumination, attachment, and delusion when they are present or long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of the material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone, and a piece of gold with an equal eye, who is equal towards the desirable and the undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friend and enemy, and who has renounced all material activities. Such a person is said to have a transcendented the modes of nature. हिंदी ट्रांसलेशन. भगवान ने कहा है, पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण की क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के डेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं. टेक्स्ट 26. माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सम गुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. इंग्लिश ट्रांसलेशन. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahm. हिंदी ट्रांसलेशन. जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म से स्तर तक पहुंच जाता है. टेक्स्ट 27. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च. इंग्लिश ट्रांसलेशन. And I am the basis of the impersonal Brahm, which is immortal, imperishable, and eternal, and is the constitutional position of ultimate happiness. हिंदी ट्रांसलेशन. और मैं ही उस निराकार ब्रह्मा का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवत गीता की जय. श्री श्री गौर निताई की जय. श्री श्री कृष्ण बलराम की जय. श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय. श्री वृंदावन धाम की जय. कार्तिक मास की जय. ऊर्जा व्रत की जय. निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे.